دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جی شیخ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ شیخ یہ تراویح کا جو ابھی معاملہ ہے 20 رکعت اور 8 رکعت، ہاں تو اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ مطلب کون سا 20 پڑھنا چاہیے یا 8 پڑھنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب ہمیں تو 20 رکعت جو ہے وہی پڑھتے چلے آئے ہیں۔ دیکھیے بھائی، جی مستند حدیث دیکھیے، وہ جو یہ 20 رکعت والا معاملہ ہے وہ ضعیف حدیث کا ہے، اور اچھا یہ 8 رکعت والا صحیح حدیث کا ہے۔ اب اگر 20 روپے کلو کھولا مل رہی اصل ہے میں شیخ میں نے 8 رکعت والے کی تحقیق کی تھی بخاری وغیرہ سے، ہاں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہی زبان ادھر ہو گیا، ٹھیک معافی چاہوں گا۔ تو انہوں نے کئی طریقے سے یہ حدیث روایت کی ہے، کسی میں 8 کیا ہے، کسی میں 7 کیا ہے نا، کسی میں 5 ہی ہے، کسی میں 4 ہے، ایسا مطلب کئی طریقے سے روایت ہے یہ حدیث۔ تو اب دیکھیے اس میں اضطراب ہے، اور آپ جو 20 رکعت والی بتا رہے ہیں ضعیف حدیث سے ثابت ہے، یہ ضعیف حدیث ہے اس کی، تو اس کی وجاہت فرما دے آپ۔ جی دیکھیے میں مختصر میں یہ ہے، میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، مختصر میں یہ ہے، سنیے میں آپ کو وہ ویڈیو بھیج سکتا ہوں۔ ایک دیوبندی عالم دین ہیں، وہ مولانا مفتی طارق مسعود، ایک ہے مولانا طارق حمید، وہ دونوں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی 8 ہی صحیح ہے۔ اور یہ دیوبندیوں کا جو معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں مراج ربانی صاحب نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ یہ چوہے کی مثل ہوتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہاں اندر کاٹ کے گھس جاتے ہیں اور بعد میں پھر اپنا فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو ان چوہوں کا مجھے آپ حوالہ نہ دیجیے۔ بھائی بات یہ ہے، اب آپ ایسے کہیں گے تو پھر آپ بتائیے نا، بخاری پر آپ اکتفا کریں کافی ہے۔ نہیں اتفاق نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اضطراب روایت، اضطراب ایک ہی حدیث جو کئی طریقے سے روایت۔ بھائی آپ وہ دیکھیں نا، عمل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عمل بتلا رہی ہیں، جو ان سے سوال کیا کسی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنے پڑھتے تھے، اور وہ بھی رمضان، تو انہوں نے کیا کہا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، انہوں نے تعین کر دی۔ دیکھیے ایک عام دنوں کی، لیکن انہوں نے اما عائشہ عمل بتلا رہی ہیں، اور ان سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا، کیونکہ بیوی اپنے مرد کے حالات کو زیادہ جانتی ہے، اور وہ تو امہات المومنین ہے، جس کو قرآن نے کہا امہات المومنین، تو وہ بتا رہے ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، تعین کر دی انہوں نے کہ وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی کبھی کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن معمول جو بتلایا وہ یہ تھا۔ اب دیکھ یہاں پہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں تو اب رمضان یا غیر رمضان، تو اگر مان لو ہم اس حدیث پہ عمل کریں تو ہم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں کریں، خالی رمضان کیوں؟ اور سنیے میری بات سے، کہیں 11 ہے تو کہیں 8 ہے، مطلب روایت میں بھی کمی اور کم اور زیادہ ہے۔ اس میں جہاں 8 کا ذکر ہے وہاں وطر نہیں ہے، تو یہاں جہاں 11 کا ذکر ہے وہاں وطر شامل ہے۔ یہ تو آسان سی بات ہے میرے بھائی۔ کیا وطر نہیں ہے؟ مطلب وطر 3 رکعت ہے تو اس میں 11 کا ذکر ہے۔ ہاں لیکن اس میں رمضان اور غیر رمضان کا بھی تو ذکر ہے، معاملہ یہ ہے بھائی، رمضان ہو یا غیر رمضان، وطر جو آپ 8 والی، اب آپ جو 20 رکعت والی جو بات کر رہے ہیں، 20 رکعت والی ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور موجودہ وقت کے جو آج اہل حدیث حضرات ہیں وہ 20 رکعت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ بدعت ہے، ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں شیخ،
तो मैं मामूली साहब, मैं आपको बस, मेरे पास भी समय कम है, मैं बता के और फिर मैं फोन कट कर दूंगा। देखिए, इब्ने तैमिया की दौर में शियाओं ने भी एतराज किया था 20 रकात तरावी पे, और इसी का हवाला बना के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बिदाती कहे थे वो लोग। किसने कहा? शियाओं ने। अरे उनकी बात छोड़िए। अब शियाओं का जवाब देते हुए शेख इब्ने तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा है कि ये हजरत शियाओं का खुला झूठ और भूतान है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी बिदती नहीं थे। ये वही नमाज है जो हजरत उबैया बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रमजान के महीने में पढ़ाने का हुक्म दिया था। ये वही नमाज है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में काफी वक्त तक कयाम किए और दूसरे दिन नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए। सहाबा ने जब पूछा तो आपने बताया मैं इसलिए नहीं आया। ठीक है, ये वही नमाज है जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उबैया बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ाने का हुक्म दिया था, और 20 रकात पढ़ाया था, और उन्होंने दो रकात नफिल पढ़ाई, वित्र पढ़ाई, है ना। ये वही नमाज है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बिदाती नहीं थे। आप मिनहाजुस सुन्ना देख लें। लेकिन मुझे ये डर लगता है, आप लोगों से डर लगता है कि आप लोग जिस किताब को हमेशा पढ़ते हो और वक्त आने पे शेखुल इस्लाम कहते हो उन्हें, आपके मनहज की जब बात रहती है, लेकिन अगर कहीं आपके मनहज के खिलाफ रहती है तो आप आसान तरीके से कह के निकल जाते हो हम इनके मुकल्लिद नहीं। तो भाई बात तो ये है, देखिए इमाम अलबानी, सुनिए, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े इमाम हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े अच्छे वो हैं मुहद्दिस। लेकिन उनसे भी एक वो उनका और अल्लामा इब्न बाज का वो हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि भाई सूरह फातिहा में रुखसत दे दी उन्होंने कि नहीं पढ़े तब भी वो चल सकता है। तो फिर उस वक्त जो मुनाजरा हुआ, तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में जहाँ भी अहले हदीस बसते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इनके इल्म की कदर करते हैं, इनके सब कुछ कदर करते हैं, लेकिन उनकी इस बात को नहीं मानेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, सरे हदीस के खिलाफ है। तो आप तो ये कह रहे हैं ना, देखो हम उनकी बेइज्जती नहीं करते किसी भी मामले। आप जो कह रहे हैं ना वहाँ ऐसा नहीं है मेरे भाई कि आप, बल्कि मेरी बात अगर खिलाफ जाए तो जब गलत है, बल्कि उनकी उस बात सुनिए। अब आपके वसूल से साबित होता है कि शेख इब्ने तैमिया कुरान और हदीस के खिलाफ जाते हैं। दूसरा ये कि आप जो सुन्नत अदा कर रहे हो, यानी कि 20 रकात तरावी को रद्द कर रहे हो, ये शियाओं का सुन्नत है, शियाओं का तरीका है ना। कौन सा? ये आप जो कह रहे हैं 20 रकात तरावी नहीं पढ़नी चाहिए, तो बाकौल इब्ने तैमिया के ऐसा कहने वाला वो शियाओं के तरीके पर है। क्या? तो शियाओं ने भी एतराज किया था इसी तरह, जैसे आज मौजूदा वक्त के अहले हदीस एतराज कर रहे हैं। नहीं, एतराज हम उनकी किसी गलत बात पर नहीं कर रहे, बल्कि वो किसी नफरत और हसद की बुनियाद, बल्कि वो अल्लाह रसूल की बात के खिलाफ इस वजह से कर रहे हैं। तो अब मिसाल के तौर पर हम जो एतराज कर रहे हैं उनसे, शिया या अपने जो भी मुसलमान भाई इस तरह कर रहे हैं नासमझी की बुनियाद पर, तो उनसे इस वजह से एतराज कर रहे हैं कि भाई ये जो तरीका है वो सही हदीसों के खिलाफ है। हिंदुस्तान में अच्छा, मुझे ये बताइए शेख, हर सही हदीस काबिले अमल है? आप मुझे इतना बता दें। हाँ बिल्कुल है पक्का? आप सही कह रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं आपको एक सही हदीस बताऊंगा और उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। जब उसका तकाजा आए। अब आप मुझसे कहने लगे भाई हज फर्ज है अभी कीजिए आप, तो मेरे पास जब हालात बनेंगे तब ना करूँगा। नहीं, आपने कहा हर सही हदीस काबिले अमल है। हाँ है ना। हाँ। और हर ज़ईफ़ हदीस काबिले रद्द है। हाँ ये भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सब्जी वगैरह में हाँ। जो सब्जी वगैरह होती है आप खरीदते हैं, हाँ। है ना, हाँ। ये इसका ज़कात जो है देना चाहिए। आप देते हैं? सब्जी का ज़कात देना चाहिए। हाँ। वो कैसे?
क्यों हैं? अब देखिए शेख, अब लग रहा है मुझे आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, उसूल हदीस भी बताना पड़ेगा, हालांकि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे बुखारी शरीफ में, सुनिए, बुखारी शरीफ में सही हदीस है, ये मैं मानता हूँ और इस पे इत्तेफाक रखता हूँ, सही हदीस का इनकार नहीं है। लेकिन जो हदीस इस्तिराब वाली हदीस हो, जैसे रमजान, गहरे रमजान आपने जिक्र किया है ना, और जैसे कहीं 11 का है, कहीं 8 का है, कहीं 9 का है, तो ये उसूल हदीस है, आप पढ़ लेना। जो इस्तिराब वाली हदीस हो वो उसे मुहद्दिसीन ने काबिल अमल नहीं लिया है या काबिल कबूल नहीं किया है। नहीं, गलत बात, यहाँ आपकी बात गलत मुझे है। गलत मत, नहीं, आप मुझे गलत मत कहो, अगर मैं गलत निकल जाऊंगा। मुहद्दिसीन ने ये किया, ऐसा नहीं है, आपकी समझ में ना आया आप ये कहिए। शेख मेरी बात सुनिए, मैं इस पे आपको दर्जनों हवाला दे दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन आप तहकीक कर लीजिएगा। खैर, बात कहाँ की कहाँ चली गई, बस मुझे ये बात करना था कि 20 रकात तरावी का इनकार करने वाला शिया के नक्शे कदम पर है। मैं कुल मिला के यही कहूंगा कि 20 रकात तरावी का इनकार करने वाला शिया के नक्शे कदम पे है। अगर उसे जानना हो तो वो मिनहाजुस सुन्ना इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया साहब का किताब पढ़ ले। नहीं, उन्होंने तो रद्द किया था। 20 रकात तरावी पढ़ने वाला अहले सुन्नत वल जमात से है, हक पर है और जो है सही तरीके से। नहीं, गलत बात, नहीं गलत बात, मैंने हवाला दे दी। वो आपकी बात इसलिए गलत है, जिस हदीस में आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह का ये रेफरेंस दे रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उसी सफ़े में पहले ये है हजरत उमर के दौर में लोग पढ़ा करते थे, वहाँ तायीन नहीं है कि हजरत उमर ने ऑर्डर जारी किया। उसके बाद एक हजरत उमर ने तमीमदारी उबई इब्न काब को हुक्म दिया 11 रकात खवातीन को पढ़ाओ, मर्दों को पढ़ाओ। सुनिए, फिर अब आप सुनिए, तारीख़ उठाइए, शेख मेरी बात सुनिए, तारीख़ इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह का उठाइए। जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है तो इमाम तिबरानी लिखते हैं कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है तो माह रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ाते हैं और साथ मस्जिद में वो इफ्तारी का इंतजाम भी किया करते थे। ये आप तारीख़ तिबरी में पढ़ लीजिए। अब पता नहीं आपको इल्म नहीं है जो इस तरह आप बात कर रहे हैं, या फिर आप अपनी मनहज को साबित करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, मनहज सबसे बड़ी बात है, अल्लाह और उसका रसूल का फरमान, ठीक है। ये मनहज शुरू से चला आ रहा है, सहाबा से लेकर सल्फ़ो अब अगर सारी दुनिया जमात जो है जो निकली बीच में, इन्होंने तरह तरह का बिदअत जाहिर किया। अरे भाई, ये बिदअत छोड़ के तो इधर आते हैं, हम भी बिदअत नहीं इधर आए। सुनिए, आपकी गलतफहमी है। मैं आपको अब देखिए, यहीं पे आप देख लीजिए कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि खाली हजरत उमर की दौर में था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खाली उनके ही दौर में आप बता रहे हैं, हालांकि वहां से मैं आपको पूरा लास्ट तक पहुंचा दूंगा, सल्फ़ो सालेहीन सहाबा ताबीन सब तक पहुंचा दूंगा। अरे भाई, ये सब लोग जो है पहुंचाते हैं, वो ऐसे ही पढ़ के, यही सब पढ़ के आप जो है ये सबको अहले हदीस बनाते हैं। ईद मिलादुन नबी को सबूत भी कुरान से देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये सुन्नी भाई हमारे ईद मिलादुन नबी का भी सबूत वो कुरान से दे देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। अरे भाई, जो चीज 600 साल बाद नबी के बाद आई हो उसको भी कुरान से जोड़ दे। ईद मिलादुन नबी, आपका नाम क्या है? अरे जो नाम क्या है? फोन किया मुझे, वही मेरा नाम है। मैं याद नहीं रहा, मैं नाम क्या है आपका? इस नंबर से मुझे अब कम से कम थोड़े दिन में आया नहीं, इस नंबर से बहुत फोन आते हैं, बहुत पकाते हैं। मेरा नाम इंसान अली शाह है। सुनिए, आपका नाम क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा नाम खुर्शीद आलम है। अच्छा, खुर्शीद आलम साहब, ईद मिलादुन नबी वगैरह के ताल्लुक से फिर इंशाल्लाह कभी मैं आपसे इस पे भी मजीद बात करूंगा भाई। अल्लाह, ये तरावी का टॉपिक जो सही मुकम्मल हुआ, सही हदीस है, अमल का एक तौफीक दे, मैं तो ये कहता हूँ। ये तो खाली शेख, ये तो खाली आपका टाइटल है, सही हदीस और कुरान, हालांकि आपका खुद अमल नहीं है सही हदीस से और कुरान से। इससे बाद में बात करेंगे, डिस्कस